Ladies and gentlemen, it's a day of mourning for the nation and perhaps the world as the last rites of Asha Bhosle is set to be held shortly at Chaitya Bhumi in Mumbai's Dadar area. The final journey is now underway as the legendary singer's last remains is now being taken to the crematorium. She passed away on 12th April in Mumbai at the age of 92, and the last rites will be conducted according to Hindu rituals. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, Deputy Chief Minister Eknath Shinde and Sunitra Pawar earlier paid the tribute. She was admitted to the hospital a day earlier due to a chest infection and breathing problems. And earlier, fans and well-wishers paid their last respect at her residence in Lower Parel. Celebrities and fans alike are remembering her not just for her songs, but for the emotion and life she brought to every performance. Legendary singer Asha Bhosle's passing marks the end of an era. With a career spanning decades, her voice became a part of millions of lives. For timeless classic to modern hits, her voice defined generations. She may be gone, but her music will live on forever. Those visuals that you see on your screens right now is live from Mumbai. Through the day, there was a steady stream of people coming to her Lower Parel residence to pay their last respect, where her mortal remains were kept. And Asha Bhosle has been remembered for the numerous songs and the variety that she brought in her singing, constantly reinventing herself over the decades. She chose to be bold, she chose to reinvent, she chose to never really let age define her craft. Whether it was Indian classical, whether it was a Bollywood playback, ghazals, pop, sensual, experimental, cabaret, she was the name, she was the chosen one, and she was music composers' delight. Those visuals are on your screens right now. She has been accorded a full state honors. Her mortal remain is being taken to Chaitya Bhumi in Mumbai's Dadar area. And you can see the sea of people who are walking along her mortal remain only goes on to signify the kind of love, adulation and admiration that she has enjoyed not only during her life, but even in her death. She breathed her last at the age of 92, but even until recently, she would often serenade at a gathering, she would often enjoy music and quick chatter. And to get us more updates from the ground, I'm joined by Vinod Jagdale, who's live from Shivaji Park, Mumbai. विनोद, ये बताइए अभी क्या स्थिति है ग्राउंड में? देखा जा रहा है कि बहुत लोग साथ चल रहे हैं मॉर्टल रिमेन्स के, चैत्य भूमि तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे सारे सीनियर लीडर्स भी मौजूद है, स्टेट ऑनर्स भी दिया गया है। अभी क्या कुछ जानते हैं हम ग्राउंड की स्थिति के बारे में? देखिए, आशा भोसले का जो अंतिम यात्रा है वो थोड़ी देर में शिवाजी पार्क पर पहुंचने वाली है। इस समय हम शिवाजी पार्क पर ही मौजूद हैं और ये वो जगह है, इस जगह पर देखिए पंडित अभी मंत्र पढ़ना यहाँ पर शुरू कर दिए हैं और ये वही जगह है जहाँ पर उनकी चिता को वहाँ पर अग्नि दिया जाएगा। फिलहाल पूजा यहाँ पर चल रही है। जब पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेगा तो करीब आधा घंटे यहाँ पर मंत्रोच्चार और अन्य पूजा यहाँ पर की जाएगी और उसके बाद यहाँ पर मुखाग्नि दी जाएगी। देखिए, अब तक पार्थिव शरीर आया नहीं है, लेकिन अगले 5 से 7 मिनट में पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचने वाला है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार जो राज्य की दूसरी उप मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। बीएमसी कमिश्नर है, बॉलीवुड जगत की कुछ हस्तियाँ यहाँ पर पहुँची हैं। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र चव्हाण यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक्टर विवेक ओबेरॉय भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो थोड़ी देर में यहाँ पर पार्थिव शरीर आने के बाद यहाँ पर अगली विधि यहाँ पर की जाएगी। पंडित जी से
कुछ देर पहले हमने बात की तो पंडित जी का ये कहना है कि यहाँ पर पार्थिव शरीर आने के बाद 30 मिनट बाद यहाँ पर एक पूजा 2-3 पूजा यहाँ पर की जाएगी और उसके बाद पार्थिव शरीर को यहाँ पर मुखाग्नि दी जाएगी। देखिए, आशा भोसले एक बॉलीवुड का एक ऐसा नाम, प्लेबैक सिंगर। उन्होंने उम्र की 10 साल में पहला अपना गाना वहाँ पर गाया जो एक मराठी फिल्म के लिए था। उसके बाद जब उनकी माँ ने उनसे कहा कि अगर आपको बड़ा बनना है, आपको इस कुएं के अंदर मेंढक की तरह नहीं रहना है, आपको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी माँ की बात उन्होंने दिल पे ले ली और वो सीधे मुंबई पहुंची। 4 साल स्ट्रगल करने के बाद आखिरकार उन्हें पहला मौका वहाँ पर मिला। बाद में ओपी नैयर जो संगीतकार है उनसे उनके साथ उन्होंने काम किया और फिर उसके बाद आशा भोसले ने कभी पीछे मुड़कर वहाँ पर देखा नहीं। आपको पता ही होगा कि आर.डी. बर्मन जिनके साथ उन्होंने शादी भी की थी तो उनकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी गाने उनके हिट रहे। इसमें एक गाना है दम मारो दम और अन्य तरह के गाने यहाँ पर उन्होंने गाए। आशा भोसले की खासियत ये है कि उनकी बड़ी बहन यहाँ पर बड़ी पार्श्व गायिका थी, लेकिन उनके साये में रहकर भी उन्होंने अपना एक अलग छवि यहाँ पर उन्होंने दिखाई। उन्होंने गज़ल गाए, उन्होंने कैबरे वहाँ पर गाए, उन्होंने भावगीत, भक्ति गीत, बॉलीवुड के गाने, ऐसे कई तमाम तरह के गाने वहाँ पर गाए और अपनी एक अलग छवि यहाँ पर उन्होंने खड़ी की और इंडस्ट्री में एक अपना अलग नाम, बहन बड़ी गायक होकर भी अपनी एक अलग नाम, अलग दबदबा यहाँ पर बॉलीवुड में आशा भोसले ने वहाँ पर बनाया। देखिए, 12,000 गाने उन्होंने गाए, मराठी, हिंदी और अन्य भाषाओं में भी ये गाने यहाँ पर उन्होंने किए और यहाँ पर सैकड़ों जो स्टेज शो है ना वो भी वहाँ पर किए, फिर चाहे लंदन हो, दुबई हो या अन्य देशों में जाकर वहाँ उन्होंने वो शो किए और अपनी एक अलग छवि वहाँ पर उन्होंने निर्माण की। और आज वही आशा भोसले हमारे बीच नहीं है। 80 साल तक उन्होंने गाना गाया। आपको पता ही होगा जब उनका 90वां जन्मदिन था तब दुबई में एक प्रोग्राम में उन्होंने अपने वही अंदाज में एक सुरीला वहाँ पर कई गाने गाए और बाद में कह सकते हैं पिछले 1 साल से उनकी तबीयत थोड़ी थोड़ी वहाँ पर नरम गरम होती रही और इसके बाद तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई और बाद में हॉस्पिटल में कल एडमिट किया गया 2 दिन पहले और कल वो हमारे बीच नहीं रही। 92 साल का ये सफ़र उनका आज यहाँ पर थम गया है। 80 साल तक उन्होंने वो काम किया, एक नाम कमाया। सांगली में पंडित दीनानाथ उनका जन्म हुआ। वहाँ पर 5 बहनें कह सकते कि लता मंगेशकर, आशा भोसले और उनकी 2 और बहनें पंडित दीनानाथ मंगेशकर। आशा भोसले ने फिर भी अपना एक अलग नाम वहाँ पर दर्ज कराया है, बहन एक बड़ी सिंगर होकर भी। तो कह सकते कि आप उनकी जर्नी वहाँ पर खत्म हो चुकी है। यहाँ पर राज ठाकरे, जैसे हमने कहा, देखिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। राज ठाकरे ने पहले ही कहा था कि उनसे उनका एक पारिवारिक नाता है। हमेशा राज ठाकरे घर में कोई बड़ा प्रोग्राम हो या फिर उनके बेटे की शादी हो, वहाँ पर आशा भोसले ने शिरकत की थी। कभी उनसे गप्पे मारने के राज ठाकरे उनके घर पर भी जाया करते थे। तो एक अलग नाता वहाँ पर हमेशा देखने को मिला। राज ठाकरे फिलहाल पहुँच चुके हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से वो मिल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिल रहे हैं और अन्य उप मुख्यमंत्री से भी वहाँ पर सुनीता पवार से वो मुलाकात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह सकते कि वीआईपी एक एक करने आने शुरू हो चुके हैं। पार्थिव शरीर कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाला है। जी, आप एक बार हमें दिखा सकते हैं कि वहां पे कौन लोग मौजूद है, क्या हो रहा है शिवाजी पार्क में, कितने लोग आके अभी वेट कर रहे हैं, उनके पार्थिव शरीर को वहां पे पहुंचने में कुछ देर बाकी है, अभी क्या वहां पे स्थिति है, एक बार अगर आप दिखा सके हमें। देखिए, जहाँ पर वीआईपी बैठे वहाँ पर नज़ारा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको कैमरामैन को कहूँगा कि देखिए यहाँ पर जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होने वाला है उस जगह का नज़ारा मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पंडित बड़ी मात्रा में यहाँ पर मौजूद है। करीब यहाँ पर बताया देखें तो हम यहाँ पर 15 पंडित हैं जो मंत्रोच्चार कर रहे हैं। थोड़ी देर में पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पर 3 पूजाएँ की जाएगी और उसके बाद वहाँ पर मुखाग्नि वहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर वीआईपी एक एक कर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बॉलीवुड जगत हो, खेल जगत हो या फिर राजनीति, यहाँ पर लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। अब कुछ ही देर का इंतज़ार है।
कुछ ही देर में पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँच जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पर अंतिम संस्कार की जो आखिरी प्रक्रिया है वो वहाँ पर शुरू हो जाएगी। जी। Well, that is my colleague getting us all the updates from Ground Zero, where several people are waiting with bated breath at the Shivaji Park for one last time to pay their last respect to the legendary singer Asha Bhosle, who is remembered not only for the songs that she rendered her voice for, but also for the person that she was. The versatile singer, the icon, who sang for over 7 decades, is going to be remembered for the legacy that she's left behind, essaying certain songs that other singers may have not been comfortable with. But Asha Bhosle was there, defying the odds, breaching the glass ceiling, and creating a niche for herself like none other in the industry. She started singing at a young age of 10 years. And a big break was in 1957 in the O.P. Nayyar's film Naya Daur, where she sang a song that was penned by Sahir Ludhianvi, Ude Jab Jab Zulfe Teri, and then it was no looking back for her. She was then signed by B.R. Chopra for several movies, whether it was Hamraz, Aadmi Aur Insan, Waqt, and then of course a big break came with Teesri Manzil, which was a movie that received popular acclaim. Not only was she a versatile singer, but she always had this child in her